हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का 70वां अवलोकन करने वाले हैं और अगले सेशन में हम 70वां अध्याय का अवलोकन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता एंड today's session is the 17th such session where we are doing an overall uh, overview of Bhagavad Gita. A very interesting verse I came across that I was reading today in the Srimad Bhagavatam. It is mentioned, Yatagnas tamasa yukta upasate vyaktum evahi na veda purvam aparam nashta janma smritis tatha. So in this very nice shloka of Srimad Bhagavatam, the translation to it is, as a sleeping person acts according to the body manifested and accepts it to be himself. यथाग्नस तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तुम एवही. जैसे कि कोई सोता हुआ व्यक्ति कार्य करता है. कैसे कार्य करता है? वो अपने अ, हमारे भौतिक जगत में हम कैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सोते हुए व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो आंखें बंद कर चुके हैं. तो इस देह को वो सर्वसार मानते हुए, यही उसका अस्तित्व मानते हुए, वन आइडेंटिफाइज विद दिस प्रेजेंट बॉडी, अपने इस शरीर से वो अपना पहचान बना लेता है. विच एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ पास्ट रिलीजियस एंड इरिलीजियस एक्शंस. और ये शरीर कैसे मिला? अपने पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से, अच्छे कर्म बुरे कर्म की वजह से एक देह उसको मिला है. एंड इज अनेबल टू नो इट्स पास्ट और फ्यूचर लाइफ्स. लेकिन वो अपने पूर्व जन्म या आने वाले भविष्य में जो जन्म है उसके बारे में वो जान नहीं सकता. न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति तथा. ऐसे अपने जन्म को, मानव जन्म को वो नष्ट कर रहा है. तो हमें ये मानव जन्म को परिपूर्ण करना है. इफ वी हैव टू मेक दिस ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल, then Hare Krishna, just give me 1 minute. If you have to make this human life successful, Hare Krishna, some technical issues, just give me 2 minutes. So if you have to make our human life successful, then we'll have to take shelter of Guru, Sadhu, Shastra. And through that medium, we will have to take shelter of the lotus feet of the Supreme Lord. हमें गुरु, साधु, शास्त्र के शरण लेते हुए उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्णा का हमें शरण लेना है. तो वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका ऑन भगवद गीता विच मेंशंस गीता पठन च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृतवो वाजी मेधाय कृतास्तेन स दक्षिणा. तो great sacrifices such as Ashwamedha, Krutavo, Vaji,
मेधाद्याः along with their remunerations कृतास्तेन च दक्षिणा। जैसे कि कोई अश्वमेध यज्ञ को कर रहा है और अपने अपने दक्षिणा को वो पा रहा है। They are naturally achieved by one who daily hears and recites the Gita. वाशबे वाजी मेधाध्या, मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो दक्षिणा, अश्वमेध यज्ञ कौन कराएगा? राजा। और राजा अगर कोई यज्ञ कराएगा तो उस यज्ञ का होता, उस यज्ञ का पुजारी को, अद्वय को कैसे दक्षिणा देगा? वो भारी भरकम देगा। तो कृतवो वाजिमेधाद्य कृतास्तेन च दक्षिणा, like a priest who gets a enormous dakshina. So for that he has to do a Ashwamedha yajna. But the same results can be achieved by somebody who is daily hearing and reciting the Gita, like you're all doing, attending the sessions of Bhagavad Gita, of here in the Zoom sessions, Bhagavatam sessions in the temple. What is happening by that? You are gaining the same merits that a person gains dakshina after doing a Ashwamedha yajna, or the person who gets the benefit of doing Ashwamedha yajna. Gita patan cha shravanam yak karoti dine dine, if you do it daily. So this is the importance of the sessions that you are attending, and this is the importance of the Bhagavad Gita the Bhagavad Gita itself. So in another shloka it is mentioned, Yash shrunoti cha Gitaartham kirtayati eva ya param shravayet cha parartham vai saprayati param padam. Very interestingly here, the author is telling, one who attentively hears and sings the glories of the purport of the Gita, Yash shrunoti cha Gitaartham kirtayati eva ya param. So he is, अगर कोई भगवत गीता का श्रवण करता है और उसका महिमा को गाता है, और he reiterates that purport to others, या फिर उस भावार्थ को वो किसी और को सुनाता है, that means the preacher. अगर आप भगवत गीता को समझ के उस भगवत गीता के ज्ञान को किसी और को बांट रहे हो तो क्या होगा? श्रावयेच परार्थम वही सब प्रयाति परम पदम, ए पर्सन अटेन्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन। केवल भगवत गीता का अध्ययन करने से, उसका महिमा गाने से और उसके भावार्थ को किसी को बताने से, तो परम पदम प्रयाति परम पदम, so the person gets supreme destination. Now all these might look like karma kandiya, like if I am going to read Gita because I have to get this benefit, I am going to glorify Bhagavad Gita because I have to get this benefit, I am going to preach Bhagavad Gita because I have to get this benefit. But here no material benefit is being talked about. तो मटेरियल बेनिफिट जब आएगा, भौतिक लाभ के बारे में जब हम सोचेंगे तो वो एक भौतिक कार्य हो जाएगा, तो एक कर्मकांडीय कार्य हो जाएगा। लेकिन ये आध्यात्मिक लाभ की हम बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक लाभ का इच्छा होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। यदि कोई भक्ति कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे भगवान की प्रेम मिल जाए, so he is having a goal in mind, लेकिन ये परमार्थिक लक्ष्य है, तो ऐसे लक्ष्य होना जरूरी है और इसमें कोई आपत्ति नहीं। सो फर्दर in another shloka it is mentioned, गीताया पुस्तकम शुद्धम यो अर्पयति एव सा आदरात्
Just listen. Sanskrit is a very easy language to understand. It's just like Hindi. Some words are very technical. So if you listen very attentively, actually you're able to get the meaning of it. गीताय पुस्तकम शुद्धम यो अर्पयति एव स आदरात्। ये तो समझ में आया होगा। सो विधीन भक्ति भावेन तस्य भार्य प्रिय भवेत्। I'll read this line again. विधीन भक्ति भावेन तस्य भार्य प्रिया भवेत्। यश सौभाग्यम आरोग्यम लभते न अत्र संशया। यश सौभाग्यम आरोग्यम लभते न अत्र संशया। दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखम अश्नुते। परम सुख पाने की चेष्टा, परम सुख पाने की जो इच्छा है, वो हम कैसे उसको पूर्ण कर सकते हैं? वन हु विथ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन स आदरात् and according to scriptural regulations makes a gift of this holy book। यदि कोई भगवत गीता का दान करता है, जब भी हमारा बुक मैराथन चलता है, हमारा एक ऑप्शन होता है गीता दान। कोई व्यक्ति जिसके पास साधन हो, वो कुछ 10-20 गीता, कुछ लोग 100-200 खरीद लेते हैं। खरीद के वो उस पुस्तक का वितरण अपने चहेते लोगों पे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स। तो जब कुछ मतलब विश्लेषण करते हुए, भगवत गीता का गुण बोलते हुए यदि वो पुस्तक वितरण करता है, तो सच ए पर्सन विल हैव ए डिवोटेड वाइफ। ये तो भौतिक लाभ है, ठीक है। तो एक चेस्ट वाइफ, तो एक पतिव्रता पत्नी उसको मिले। और पत्नी के लिए एक क्या बोलते हैं, वेरी वेल behaved and qualified husband she will get, and without a doubt he will attain fame। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके जीवन में यश, फॉर्चून, सौभाग्य, गुड हेल्थ, आरोग्य। See what we are learning here, simply by doing devotional service our fortune changes for the better, our health becomes better, and our fame for all good reasons will spread, and we will all get good things in our life। तो इससे क्या होगा? ये तो भौतिक लाभ हो गया। इससे क्या होगा? जब हमारे पास कुछ सुविधा होता है तो हम भक्ति के ऊपर हमारा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज हम उपद्रवों में हो जाएंगे। We will be trying to solve our material problems to the extent that we get completely engrossed in that। लेकिन इसके अलावा और क्या लाभ है? Furthermore, he becomes extremely beloved by those near and dear to him। हम सब सोचते रहते हैं ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग ढोंगी है, सब लोग सेल्फिश हैं, सब लोग मतलबी हैं। यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे कोई भक्त भगवत गीता का वितरण कर रहा है, तो भगवान उसको बदले में क्या दे रहा है? अपने आप को तो दे ही रहा है, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन अपने उसके जीवन में भी बहुत कुछ सुधार आ जाता है। सो ही बिकम्स एक्सट्रीमली बिलव्ड बाय दोज नियर एंड डियर टू हिम एंड एंजॉयज ग्रेट हैप्पीनेस। और एक ग्रेट हैप्पीनेस, इट्स ट्रांसलेटेड हियर लाइक दिस, बट एक्चुअली ग्रेट हैप्पीनेस ये टॉकिंग परम सुखम अश्नुते। ही विल enjoy param sukham, that is the spiritual bliss, which is what is required for devotees। बाकी सब as a side effects, बाकी सब अच्छे अच्छे चीज जो भौतिक जगत में लोग चाहते हैं, एक अच्छा बीवी मिले, एक साधन हो, एक अच्छा पति मिले, आरोग्य ठीक रहे, यश आए और सौभाग्य रहे हमारे जीवन में, लक्ष्मी देवी हमारे साथ रहे और हमें लोग पसंद करें, ये सब भी
as a side effect, it will come in our lives. So this is what is the glory of simply distributing Bhagavad Gita. You are not reading, but you are distributing. But Prabhupada says that if you are not reading, how will you effectively distribute? कोई आपसे पूछेगा इस पुस्तक में क्या है, तो आप बोलेंगे मुझे पता नहीं है। तो जो आपको पता नहीं है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो सेल है, उसके लिए तो वो कमर्शियल है। तो बोलेगा आप खुद नहीं जानते हो कि इस पुस्तक में क्या है, और आप उसको मुझे वितरण कर रहे हो और इसके लिए पैसे भी ले रहे हो, it will be a very sorry state. Prabhupada says all my disciples should know the contents of Bhagavad Gita, all the books that they're distributing. So in this sloka we revised. We will just revise this sloka. Gita, Gitaya Pustakam Shuddham. Of course, it is a pure book, pure scripture, because it's coming from the Lord's mouth. You arpayati eva sa adara. One who is gifting it with all great devotion and with respect. Vidhina bhakti bhavena, along with scriptural injunctions और भक्ति भाव से अगर वो वितरण कर रहा है, तस्य भार्य प्रिय भवेत, he'll get a devoted wife, यशस् सौभाग्यम आरोग्यम, fame, fortune, or and health, लभते न अत्र संशय, there is no doubt about it. तो दवा खाएंगे, गुणमुख हो जाएंगे रोग से या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन गीता का वितरण करने से भक्ति भावेना, विथ गुड इंटेंशंस, विथ भक्ति इंटेंशंस, देन नात्र संशया, जीवन के सारे अच्छे चीज हमारे साथ आएगा। लेकिन वो साइड इफेक्ट से, व्हाट इज द रियल इफेक्ट? परमं सुखम अश्नुते, विल बी एबल टू टेस्ट द स्पिरिचुअल ब्लिस, एंड दयितानम प्रियो भूत्वा, and all his so-called near and dear ones becomes they start appreciating him, they start liking that person. So another sloka that mentions avicharo bhavam dukkham vara shapagatam cha yat nopa sarpati tatraiva yatra gitarchanam gruhe. Where Gita is worshipped, the house where Gita is worshipped. How do you worship Gita? Best way to worship Gita is to study it. तो गीता का सबसे मतलब बेहतरीन पूजा क्या है? गीता का अध्ययन। घर में आप गीता का जब अध्ययन करोगे तो वो गीता का आराधना भी है। तो what happens into that house where the Gita is worshipped, Gita is studied, the misery caused by a curse or black rites can never enter into this house. तो आजकल का युग, आज युग है कलियुग। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, भेद होता है, और बहुत सारे लोग ईर्ष्या रखते हैं, और हमारे सुख देख के वो दुखी हो जाते हैं, शाप दे सकते हैं मनी मन में, या कोई जादू टोना करा सकते हैं। तो ऐसे माहौल को भी यत्र गीतार्चनम गृहे नोप सरपति तत्रैव, कैन नेवर एंटर दैट हाउस। किसी ने शाप दे दिया वो उसको लगेगा नहीं, किसी ने जादू टोना करा दिया वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। सो this is the protection given by the Lord, because there is no difference between Gita and the Lord. तो हम जो पढ़ रहे हैं ये कर्म कांडीय चीज नहीं है, because this is the protection given by the Lord. So what is given by the Lord is always spiritual, it is not material, especially for a devotee. तो अचिरा अभिचारोद्भवम दुखम, तो कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से हमें शापगता, तो कोई कर्ज दे देंगे, कोई शाप दे देंगे, या कोई जादू तो ना कराएंगे, नोप सरपति तत्रैव, तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। यत्र गीता अर्चनम गृहे, जिस घर में गीता हो और उसका पूजा या उसका
आराधना या फिर उसका अ, अध्ययन हो रहा हो, जो सही आराधना है, तो दैट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। फर्दर इट इज मेंशन, तापत्रयोद्भव पीड़ा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित्, न शापो नैव पापं च दुर्गति नरकं न च। Again, here the things that all people are worried about, are trying to secure, जिस इस लोक में सब लोग कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं। कुछ क्यों सिक्योरिटी चाहते हैं? they want security from the threefold miseries. They want security from their fears, their worst fears, like sickness, curse, sin, misfortune. तो ये श्लोक क्या बता रहा है? इन दैट हाउस जहां पे गीता का पठन हो रहा है, देर इज नेवर एनी सफरिंग फ्रॉम थ्री फोल्ड मिजरीज। तापत्रयोद्भव पीड़ा नैव व्याधिर्भवे, तो उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्वचित, नेवर, नॉर इज देयर एवर फियर ऑफ एनी टाइप ऑफ सिकनेस। तो न शापो नैव पापम, देर इज नो फियर ऑफ कर्स, देर नो फियर ऑफ सिंस, एंड देर नो फियर ऑफ मिसफॉर्चून। दुर्गति नरकम न चा, तो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, कभी नरक को देखना नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति, जो भी गृह के सदस्य गीता का अध्ययन, गीता का आराधना कर रहे हैं। गीता का आराधना मतलब गीता का अध्ययन। सो फर्दर इट इज मेंशन्ड हियर, विस्फोटकादयो देहे न बाधन्ते कदाचन, लभेत कृष्ण पदे दास्यम भक्तिम चाव्यभिचारिणम। सो हियर इट इज मेंशन्ड भक्तिम च अव्यभिचारिणम। तो कृष्णा इज ऑलवेज टेलिंग इन भक्ति, इन भगवद गीता, भक्ति होना चाहिए अव्यभिचारिणी, अनअलॉयड, कोई अनकंटामिनेटेड। भक्ति हमारा कैसा होना चाहिए? अनअलॉयड, अनकंटामिनेटेड, ऐसे भक्ति होना चाहिए। तो इसको हम प्राप्त कैसे करें? भगवान का दिए हुए जो उपदेश है उसका पालन करके, गुरु के मार्गदर्शन में चल के, भक्तों के संग में रह के, और घर गृहस्थी में भक्ति को लेके आने के वजह से हम अनअलॉयड डिवोशन कर सकते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है विस्फोटकादयो देहे, तो इन दैट हाउस देयर इज नो वन एवर बॉर्न विद एन infected or deformed body, न बाधन्ते कदाचन, कोई भी बाधा नहीं होगा, no handicap in their lives, nobody handicapped will be born, nobody deformed will be born, and those residing there achieve exclusive continuous devotion in the mood of servitorship to the lotus feet of the Lord। किसको? जिस घर में गीता का अध्ययन सारे लोग कर रहे, उस माध्यम से उसका आराधना कर रहे हैं, तो उस घर में विस्फोटक आदयो देहे, तो कोई भी बाधा, कोई भी क्या अपाय उसके घर नहीं पहुंचेगा। There will be no dangers that will enter the house। न बाधन्ते कदाचन, there are no troubles from deformities, miseries, disease। Then what will happen? That is the side effect। Main effect is what? Labhet Krishna pade dasyam, he will get the opportunity to serve as a servant of the lotus feet of the Lord। Labhet Krishna pada dasyam, and इससे क्या होगा? भक्तिम च अव्यभिचारिणीम, so he will enter into the exclusive continuous devotion in the mood of servitorship। दास्य भाव में वो भगवान का जो आराधना है वो कर सकता है। भगवत गीता का घर में जब आराधना होता है अध्ययन के, पठन के माध्यम से। सो इन द सेम continuity it is mentioned, जायते सततम सख्यम सर्व जीव गणैः सह प्रारब्धं भुञ्जतो वापि गीताभ्यास रथस्य च।
गीता अभ्यास रतस्य, रता मत मतलब चलते रहना, निरंतर, मतलब रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। क्या चल रहा है? गीता अभ्यास। तो जिस व्यक्ति या कोई घर में गृहस्थ या फिर आश्रम में ब्रह्मचारी, गीता अभ्यास रतस्य च, he is a person who is devoted to studying the Gita continuously, गीता अभ्यास रतस्य च, तो गीता अभ्यास, गीता अध्ययन वो सतत कर रहा है, वो भी एक भक्ति है। सततम कीर्तयन्तो माम, रीडिंग भगवत गीता is also kirtana. So when we read it continuously, it qualifies, it satisfies the injunctions given by Krishna. Satatam kirtayanto man. So what is that kirtana? Glorifying the Lord. So if you read Bhagavad Gita, you are glorifying the Lord because it is the autobiography of the Lord. भागवतम बायोग्राफी है कि कोई ऋषि मुनि ने भगवान के सारे अवतारों का जो लीला है, जो दर्शन उनको हुआ है, उसको भागवतम के रूप में उन्होंने, वेद व्यास जी ने निरूपण किया। फिर शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में वो हम तक पहुंचा। लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कौन बोल रहे? भगवत गीता तो श्री कृष्ण मुखोदघीरणम, तो कृष्ण के मुख कमल से जो आ रहा है, तो फ्रॉम दी blessed lips of Krishna, on the blessed tongue of Krishna, Gita is coming out. It is such a great literature, Vedic literature, that this literature is a manifestation of the Lord's own words. तो जिसको वेद व्यास ने लिखित रूप में दर्शाया हमें, तो गीताभ्यास रतस्य च, उसमें उसको क्या होगा? जायते सततम सख्यम, he acquires a friendly disposition to all living entities, हर जीव के साथ वो स्नेह संबंध रखता है, because he is a pure devotee, he is on the path of becoming a pure devotee. Pure devotee has the qualities of godly nature, दैवी गुण संपन्न होता है, और दैवी गुण का एक गुण है to have equal disposition, friendly disposition for living entities. उसके बाद सर्व जीव गण सहा, तो केवल अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं, अपने मित्र मंडलियों के साथ नहीं, सर्व जीव गण सहा, with all the living entities he'll have a friendly disposition despite his accruing the reactions of his previous actions in the world. हो सकता है पूर्व जन्म का बहुत कर्म और पाप उसको लगा हो, प्रारब्धम भुंजतो वापी, और उसका वो मतलब अभी भुगत रहा है, लेकिन गीता अभ्यास करते रहने से, तो पहले तो it is like surrendering to Krishna. When Krishna is telling sarva dharman parityajya mam ekam charanam raja, by reading Gita I'm actually surrendering to Krishna. By reading Gita with devotion, by distributing Gita with devotion, what I am surrendering to Krishna, I am worshipping Krishna. तो गीता अध्ययन करने से कृष्ण का पूजा हम करने वाले करते हैं, गीता का वितरण करने से कृष्ण का पूजा करते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आप 18वें अध्याय में जो बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, कृष्णा बोलते हैं, वन हु प्रीचेस दिस फिलॉसफी ऑफ दिस टॉक बिटवीन मी एंड अर्जुना is very to the devotees, is very very dear to me. Ati priya, athiva priya is what Krishna is telling in the conclusions of Bhagavad Gita. One who spreads the glories of Bhagavad Gita, one who spreads the message of Bhagavad Gita, one who gives bhakti, jnana to another person, to a devotee in the making. तो ऐसे व्यक्ति कृष्णा को अतीव प्रिया, very dear to Krishna. So why we should do book distribution? Why we should read Bhagavad Gita? By that we can become very beloved of Krishna. So jayate satatam sakyam sarvajiva ganai saha prarabdham bunjato vapi gita-bhyasa ratasya cha. So that should be the impetus for you to read Bhagavad Gita on a
daily basis. Any book you read about of Srila Prabhupada, it is like reading भगवत गीता, बिकॉज वो सारे जो भावार्थ हैं प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया है, भगवत गीता और भागवतम से. फर्दर we still have about 9 minutes. We can do some more glorification of Bhagavad Gita. So up to my 11th overview of Bhagavad Gita, I talked about the interesting facts about Bhagavad Gita. भगवत गीता का एक रोचक जो चीजें हैं तो उसके बारे में हमने बात किया था. लेकिन 12वें ओवरव्यू से मैं आई एम इंक्लूडिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ गीता. अभी अगले जो भी 18, 19, 20 जो भी हम करेंगे ओवरव्यूज, मे बी अप टू 20 ओवरव्यूज आई विल डू. तो उसमें हम भगवत गीता का गुणगान करेंगे. क्यों करना चाहिए, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. और सबसे बड़ा, गीता का गुणगान करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं. और कृष्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा. यदि कृष्णा को हम प्रसन्न कर सकेंगे, सारे जगत प्रसन्न हो जाए और हमारा जीवन मतलब सफल हो जाए. सो अनदर श्लोका इट इज मेंशन, समुक्ता ससुखी लोके कर्मणा नोप लिप्यते महापापादि पापानि गीताध्यायी करोति चेत न किंचित स्पृश्यते तस्या नलिनी दलम अंबसा. लोटस flower, lotus in water. So like the lotus in water, nalini dalam, like the lotus petal in water. The lotus petal जब पानी में रहता है गीला नहीं होता है. It will not get, can say that, wet. तो ये नलिनी, नलिनी दला मतलब नलिनी is lotus. नलिनी दला, petal of lotus, अम्बसा, जब पानी में रहता है वो पानी से प्रभावित नहीं होता है. तो यहाँ पे it is mentioned that person is liberated and happy. वो व्यक्ति समुक्ता स सुखी लोके, इस लोक में ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है इस लोक में रहते हुए भी. Although acting in this world he is not implicated. तो obviously he is a devotee. तो जो भी वो कार्य कर रहा है वो भक्ति कार्य है. तो ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों की तरह वो भी सुबह जल्दी उठ रहा है, नहा धो के फिर अपने कार्य करने जा रहे हैं. हम भी जाते हैं, हम भी अपने काम करने जाते हैं ट्रेन में धक्के खा के. ऐसे जो भौतिक लोग बोलते हैं, जो भौतिक प्रवृत्तियां है, वो लोग बोलते हैं आप भी तो जा रहे हो, आप भी उसी गाड़ी में धक्के जाके आपके कार्यस्थल मंदिर आप जा रहे हो. तो क्या डिफरेंस है. हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, आप सिर्फ आप नहीं, हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो के निकल लेते हैं हम. अब परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, फिर रात में घर आते हैं, बस खाना खाते हैं, सो जाते हैं. यही हमारी जिंदगी है. आप भी तो वही करते हो, पूरा दिन मंदिर मंदिर मंदिर, हरे कृष्णा 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 बोलते रहते हो, और भागवतम पढ़ते रहते हो, हमारा सर खाते रहते हो कि ये पुस्तक लो, वो पुस्तक लो, मंदिर आओ, दान दो, दक्षिणा दो. आप भी तो वही कर रहे हो. मैं आई एम ए सेल्समैन, मैं भी तो वही करता हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. व्हाट वी आर डूइंग इज इन लाइन विद शास्त्र. व्हाट वी आर डूइंग ये शास्त्र विधि उत्सृजन. 16वें अध्याय के अंतिम में हमने पढ़ा कल, ये शास्त्र विधि. शास्त्र विधि मीन्स व्हाट कृष्णा हैज टोल्ड. But they are doing their work for sense gratification. That is not what Krishna has told. What we are doing, though it looks like similar to what they are doing, but it is a great devotional service because we follow the scriptures, Guru, Sadhu, and Shastra. Karmana nopalipyate. तो कर्म हमें लेपित नहीं होगा उस व्यक्ति को. And even if by chance a person who studies Gita happens to commit extremely horrible sin, कोई गीता अध्ययन कर रहा है और उसने महापाप कर लिया, महापापादि पापानि गीताध्यायी करोति चेत. तो लेट्स से सपोज उसने कर लिया ऐसे पाप, तो क्या होगा, ही कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट, न किंचित स्पर्शयते तस्य. उसको वो पाप नहीं लगेगा. नलिनी दलम अंबसा, जस्ट एज ए लोटस लीफ cannot be touched by water. अब इसका अर्थ हमें सही तरीके से देखना है. अच्छा, जो मैं इसका मतलब है, मैं जो भी पाप करना चाहता हूं
कर सकता हूँ, गीता अध्ययन करना है बस। देन लॉर्ड विल नॉट मेक दैट इक्वेशन। कोई अनजाने में हो गया, कोई फोर्स ऑफ काम वासना में हो गया, तो एक आध बार हो गया और आप शर्मिंदा हो और भगवान से माफी मांग रहे हो, not that it's becoming a practice, so then न किंचित् स्पृश्यते तस्या। So if somebody was reading Gita, somebody was studying Gita, Mahapapati papani, if he has committed, then na spursyate. Krishna will make sure. Of course, Krishna knows our nature because we are not doing it in pure devotion. ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जितने मात्रा में हम गीता को भक्ति भाव से हम अध्ययन कर रहे, उतने मात्रा में ये कृष्णा करेंगे। और बाकी जो थोड़ा कर्म बच जाता है, रेसिडुअल कर्मा, he will make us go through that. He will adjust it so that there is justice done. So Nalini Dalam Ambasa, just like water doesn't affect or make the lotus leaf wet, similarly a person who is studying Gita has become such a person that if by chance he does a great sin, he is not going to be affected by that. He is not affected by the usual karmic reactions of his daily activities, और समुक्त, वो मुक्त है इसी लोक में और सुखी है। दिस इज रियल हैप्पीनेस। ही इज द पर्सन हु गॉट रियल सुखी। हियर इज नॉट उसके 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लग गया। सुखी इज टॉकिंग आध्यात्मिक सुख, जो शाश्वत सनातन सुख होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। विल गो फर्दर एंड विल टेक अप one more of glorification of Gita. अनाचरोद्भवं पापम अव्याचादिकृतं च यत् अभ्यक्ष्य भक्षजं दोषम अस्पृश्य स्पर्शजं तथा। तो ध्यान से सुनिए। ज्ञानाज्ञान कृतं नित्यम इंद्रिय जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीता गीता पाठेन यत् क्षणात्, गीता पाठेन तत्क्षणात्, उस क्षण जब गीता पाठ हम करते हैं, उस क्षण की बात हो रहा है। तो बाय डिवोशनल रिसाइटेशन ऑफ गीता, भक्ति भाव से हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो तत्क्षणात्, उसी समय क्या होता है, तत्सर्वं नाशयामायाति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? तो दैट सिंस अराइजिंग फ्रॉम ऑफेंसिव बिहेवियर और स्पीच, जो पाप गलत बोली बोलने से, किसी को गलत बोल के हर्ट करने से जो पाप लगता है, अनाचारोद्भवम पापम अव्याचादि कृतम चेत, अव्याच शब्द से अनाचार किसी के ऊपर हमने कर दिया, ये पाप लग गया, तो ऐसे पाप उसको नहीं लगेगा। बट अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट दैट वी शुड यूज। अच्छा ये कम सब कर सकते, गाली दे सकते हैं, भगवद गीता पढ़ेंगे तो नष्ट हो जाएगा, वैसे कभी नष्ट नहीं होता है, उस उद्देश्य से हम करेंगे तो। देन अभक्ष्य भक्षजम दोषम एंड ऑफेंस ऑफ ईटिंग फॉरबिडन फूड्स। तो ऐसा नहीं कि कल मैं मटन चिकन खाऊंगा और ये श्लोक में सबको बताऊंगा, कुछ नहीं होगा। देन कृष्णा विल पनिश अस मोर because we are knowingly doing it. अभक्ष्य भक्षजम, अनजाने में हो गया। अस्पृश्य दुर्शजम, तथा जो छूना नहीं था उसको छू लिया। Activities incited by the senses and committed unknowingly or knowingly in daily routine. Jnana ajnana kritam, so knowingly unknowingly has done. Indriya janitam chayat, because of his urges. Then tat sarvam nashamayati Gita padena takshana. Now, this is the benefit of reading Gita. It has, apart from giving you bhakti, it has all these benefits.